ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਈਸ਼ਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਐ ਜੋ ਲੜੇ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਰੀ ਮੁਰਿਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਕ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਕ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਉ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ।
जन्म जन्म के किल बिग दुख वितरे, गुरु नाम दियो रिण दाता। गुरु रूप गुरु प्यारे खालसा जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਸਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ 22 ਮਈ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਮਈ 1964। ਕੁਝ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1964 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1964 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ, ਜੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਕਾ ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਤਲ, ਕਾਤਲ, ਮਕਤਲ, ਮਕਤੂਲ। ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਕਤਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਕਤਲ। ਮਕਤੂਲ, ਮਕਤੂਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਕਰਤੱਵ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਮਕਤਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਕੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
जदों चल के खुद गए ने शहादत देने वास्ते, फिर साका साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी तिलक जंजू की खातर उसकी रक्षा करने वास्ते खुद पहुंचे ने दिल्ली। फिर साका सरहंद, क्यों चमकौर में भी साहिबजादे की शहादत हुई है तो सरहंद में भी साहिबजादे की शहादत हुई है। ते शहादत ते शहादत में फर्क है। उथे साहिबजादे जंग में जूझ के शहादत प्राप्त कर गए ने, पर सरहंद दे विच खुद चल के इन्हां ने हत्यां नूं नीहां विच खिला के शहीद किया गया। कहता जदों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत होने लगी है ना, तो चंदू ने की किया, चंदू कहता इसनूं रिझदे पानी के उबलदी देग विच उबाल दो, इसनूं बिठा दो देग दे विच। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, चंदू तू इन्हां नूं तकलीफ क्यों देंदा है, एक काम मैं खुद ही कर लवांगा। ते जाके खुद ही देग दे विच बैठ के एक अनोखियां घटनावां हैरानी करके, तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी भी खुद चल के पहुंचे ने। ते छोटे साहिबजादे किवें असीं जानते हैं, छोटियां निक्कियां जिन्ना वड्डे साके, कितना वड्डा साका करके ने जाके नीहां दे विच खलो गए ने। ते जाके की कीता है, जयकारे गुंजाए ते शहादत दे दी। इवें ही जदों साके होए गुरु साहिब जी के समय तो ये चलती आ रही सी गल कि गुरुद्वारियां का प्रबंध जिहड़ा सी, गुरुद्वारा साहिब के जिन्ने प्रबंध सन ओह मसंदा निर्मले संत उदासी साथ इन्हां दे हत्थां विच सी। ये गुरु साहिब जी के समय तो गल चलती आ रही सी, इन्हां दे हत्थां विच सी गुरुद्वारे का सेवा संभाल का प्रबंध। पर जदों हौली हौली तकरीबन गल करिए कि गुरुद्वारे की सेवा संभाल का काम गुरु साहिबाना के समय तो मसंत उदासी ते निर्मले करते आ रहे सन, पर 1716 तो लैकर के 1799 तक तकरीबन गुरुद्वारियां की सेवा संभाल का काम जिहड़ा सी वो इन्हां दे हत्थां विच आ चुका सी। समा बदलिया, खालसा राज की कुछ अपनी कारण हुए जिस कारण आपसी फुट पै गई या कुछ अवेसलापन आ गया, जिस कारण एक गुरुद्वारे का प्रबंध जिहड़ा सी महंतां के कब्जे विच आ गया। महंतां ने इन्हां पर कब्जा कर लिया। महंत जिहड़े सन गुरुद्वारे वास्ते निजी जायदाद समझना शुरू कर दिंदे सन। उन्होंने निजी जायदाद बना के इस उपर मर्जी किसी ने गुरुद्वारा साहब आउण देना है, मर्जी नहीं आउण देनी। उन्हें अपने सारे प्रबंध जिहड़े सन गुरु की मर्यादा नूं भंग करके अपनी मर्यादावां बना लईआं ते गुरुद्वारे का प्रबंध अपने हत्थां विच करके इत्थे मानिया करन लग पए। जिथे कि सिख धीआं भैणां दी इज्जत पत दे खातर शहादतां दिंदे सन, उत्थे गुरुद्वारियां दे विच दिन दिहाड़े धीआं भैणां मातावां नूं बेपत कीता जांदा। जिवें कि
हरमंदर साहब विखे आपां गल करिए अमृतसर विखे गुरुद्वारा साहब की बेदबी हरमंदर की बेदबी होंदी वेख के भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह, बाबा दीप सिंह जी, समय अनुसार जसा सिंह आलूवालिया जी, जिन्हों ने अपनी कठिन जतन के सदका महंतां पासों हरमंदर साहब को आजाद करवाया, कब्जा लै करके जिवें कह लीए कि सारा ही कार्यकाल अपने हत्थों में ले लिया। इवें ही तरनताਰਨ साहब की गल, तरनताਰਨ साहब भी दिन दिहाड़े जिहड़ा सी गुंडागर्दी चलती सी, किसी धी भैन की इज्जत उत्थे सुरक्षित नहीं सी, मनमानियां करते सन महंत, जिन्हां दे खिलाफ आवाज उठाई सरदार हजारा सिंह जी। जदों सरदार हजारा सिंह जी ने आवाज उठाई तो सरदार हजारा सिंह जी नूं तरनताਰਨ साहब दरबार साहब विखे गुरु महाराज नूं नमस्कार करदिआं ही 31 जनवरी 1921 नूं तकवे दे नाल शहीद कर दिता। फिर गल करिए जिवें ही ननकाना साहब जदों नरैणू महंत दे पासों गुरुद्वारा साहब नूं आजाद करवाया, भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली होर भी काफी सिंह उत्थे जा करके शहीद हुए। साका ननकाना साहब, आप साका ननकाना साहब, साका गुरु का बाग, साका जलियांवाला बाग, इवें साके हुए हैं। जदों भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली नूं जंड दे नाल बंन करके पुट्ठा लटका के शहीद कर दिता गया, उस तो बाद सिखां ने उस शहादत के सदका जिहड़ा ननकाना साहब का कार्यकाल की खुद संभाल लिया। इवें ही हुण गल करिए पौंटा साहब, पौंटा की सी? पहला पौंटा साहब का इतिहास थोड़ा जिहा अपनी नाल साझा करिए। नान पौंटा, नान का राजा सी मेदनी प्रकाश, जिसने धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपने पास बुलाया। आनंदपुर साहब तो मेदनी प्रकाश के बुलावे को प्रवान करते हुए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पहुंचे ने नान, नान तो पहुंचे ने पौंटा साहब। जब इतने पहुंचे ने एक बोर्ड का बड़ा दरख्त सी, जिसके थले जाके धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपना घोड़ा खड़ा कर दिता। जदों घोड़े तो उतरे ने ते सज्जा पैर टिकिया है जदों साहिबां दा धरती के उपर ते पांव टिके तो पौंटा, तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजा मेदनी प्रकाश नूं कहन लगे कि यह स्थान जिहड़ा बड़ा शोभनीक है, बड़ा सुंदर है, हरियां भरियां पहाड़ियां हैं, हरियाली भी बहुत है, जमुना नदी का किनारा है, बड़ा सुंदर दृश्य है, क्यों ना इतने ठिकाना किया जाए। मेदनी प्रकाश बहुत खुश है, वो यही चाहता सी कि साहिब इतने ठिकाना कर। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जदों उत्थे पैर टिकिया तो उसका नाम पै गया पौंटा साहब। वैसे घोड़े की रकाब को भी पौंटा कहा जाता है, क्योंकि पैर टेकता है, ते पौंटा पैर में पहनने वाले जोड़े भी कहा जाता है, पैर टेकता है, पांव टेके तो पौंटा। इस तरह जिथे साहिबां के जन्म पै गए वो था पौंटा साहब। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी 4 साल इतने विश्राम किया है, 4 साल इतने टिके हैं। 1685 तो लैके 1699 तक धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने इतने रह करके अपना ठिकाना किया, जिस दौरान 52 कवि
52 कवि तैयार करके कवि दरबार करवाना शुरू कर दिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने। जदों कवि दरबार करते थे जमुना नदी जी के पहाड़ों के विचों दी हो के आती सी, इसका बड़ा शोर पैदा होता सी, बड़ी आवाज पैदा होती सी ते कवि दरबार का जो रस सी थोड़ा अधूरा रह जाता सी। कवि कह लगे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कृपा करो ये नदी कितने शांत हो जाए, उन्हें आवाज रुक जाए ते होर भी आनंदमय ढंग नाल कवि दरबार किया जा सकता है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कह लगे कोई गल नहीं, ये भी हट जाएगी, ये भी शोर नहीं करेगी। हुण वेखो जदों असीं पौंटा साहिब जाते हाँ ते पिछे भी जदों जमुना नदी वगदी है तो कितनी आवाज करती है, ते जदों पौंटा साहिब तो अगे भी चली जाती है तो कितनी आवाज करती है। उदों अज भी शांतमई ढंग दे नाल जिहड़ी पौंटा साहिब की नदी है, जमुना नदी है, पौंटा साहिब के कोलों अज भी शांतमई ढंग दे नाल गुजर जाती है ते आवाज नहीं करती। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की बख्शिश है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के नाल पौंटा साहिब विखे पीर बुद्धू शाह जी का मिलाप होया। उस समय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी अपने केस कंघा कर रहे सन। पीर बुद्धू शाह जी ने मांग की कि गुरु साहिब जी कृपा करो कि कंघे की बख्शिश कर दो मैनूं। ते साहिबा ने अपने केसां दे समेत ही जिहड़े केस उस कंघे विच सीगे उन्हां केसां दे समेत ही कंघा उसनूं भेटा दे दिता। फिर इत्थे भंगाणी की जंग हुई। भंगाणी की जंग दे विच धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की भूआ बीबी बीरो जी के पुत्र भी इतने शहादत भंगाणी की जंग दे विच शहीद होए। पीर बुद्धू शाह जी के 4 पुत्र इतनी शहादत प्राप्त कर गए। जदों भंगाणी की जंग दे विच जित हुई है तो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी को खबर मिली कि आप जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया है, प्रकाश का आया है, उसका नाम की रखा जाए। तो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कह लगे कि अज असीं जित प्राप्त की है, सानूं बड़ी खुशी है, उसका नाम अजीत सिंह रख दिओ। जदों अजीत सिंह रखा गया तो साहिबजादा अजीत सिंह जी ने जदों चमकौर की जंग में यह गल साबित कर दी कि अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, अगर जीता गया तो रंग से लौट के नहीं आऊंगा, कि रंग तो मैं वापस नहीं परतांगा, जो मैं शहीद हो जावांगा पर मैं किसी को जितया नहीं जावांगा। वो अवस्था बनी। ये पौंटा साहिब का इतिहास सी। पौंटा साहिब आज गल करिए कि वो किवें आजाद करवाया, की उत्थे साका होया, उस बारे आप जी नाल थोड़ी जी विचार साझ पाइए। कि जदों जलियांवाले बाग दे विच साका होया जलियांवाले बाग दा, उस समय की गल है कि महंत लहणा सिंह जलियांवाले बाग दे विचों खूनी साके दे विचों बच नहीं पाया। महंत लहणा सिंह जदों यह खालसा पंथ के सामने होया कि मैं जलियांवाले बाग दे विचों खूनी साके दे विचों बच गया हाँ, इसका सत्कार किया। तो सरकार के तौर पर इसनूं पौंटा साहिब की सेवा संभाल जी दे दी। समा पिया, दयाल सिंह अकाल चलाना कर गया। उस तो बाद उसका बेटा गुरदयाल सिंह ने पौंटा साहिब में अपनी निजी जायदाद समझते हुए इसका कब्जा जरा अपने अंदर लै लिया, कार्यकाल की संभालना करनी शुरू कर दी गुरदयाल सिंह। पर गुरदयाल सिंह दिन दिहाड़े मन मानियां करता, बड़ियां ही
मनमानियां करदा ते जदों उसकी गुरुद्वारे की बेदबी हुंदी तक्की ते उत्थों दीयां संगतां ने इसकी शिकायत खालसा पंथ के कोल कीती कि खालसा पंथ जीओ पाउंटा साहिब की बड़ी बड़ी बेदबी की जा रही है, उत्थे गुरुद्वारा साहिब की बड़ी बेदबी हो रही है, करो किरपा जाके उसनूं महंत के पासों आजाद करवा लईए। उदों हरियां वेलां वाले तरना दल के जथेदार साहब ने आनंदपुर साहिब विखे यह ऐलान किया, सिखां नूं यह गल कही कि सिखो अज असीं अपने गुरुद्वारा साहिब विखे ये इकत्तरता इस करके की है ताकि जाके असीं पाउंटा साहिब नूं आजाद करवा सकीए, उस महंत के पासों आजाद करवाइए जिवें कि सिख धर्म की गल हुंदी है। संगतां ने बड़े ही प्यार नाल, अदब नाल, सत्कार नाल जो भी रस्ते विच रसदां चाहिदियां सन वो रसद पानी इकट्ठा किया ते गड्डियां उपर उसनूं लद करके गड्डे जिन्हां दे लक्कड़ दे पहिए हुंदे सन उन्हां दे अगे घोड़े लगा के गड्डे लैके जांदे सन। जदों उन्हां नूं लै करके तुरन लगे ने 38 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा जिहड़ा है तुरिया है आनंदपुर साहिब, जिस विच कुछ 5-7 भुजंगी ते 5-7 नौजवान जिहड़े कि 60-65 साल तो उपर बजुर्ग हो जाते उन्होंने नौजवान कहा जाता है, ये जथे विच शामिल सन। जदों जथेदार साहिब इन्हों लैके जान लगे तो इन्हें कहा, जथेदार साहब ने एक गल सिखां नूं पक्की परपक्क करवाई कि सिखो रस्ते विच जांदियां ना किसी दे पट्ठे वढ़ने हैं, ना किसी की फसल उजाड़नी है, ना किसी नूं तंगी देनी है, एक शांतमई ढंग के नाल असीं पाउंटा साहिब विखे पहुंचना है। जदों महंत गुरदयाल सिंह नूं इस गल की सूचना मिली, उसनूं डर सी कि निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा जिहड़ा है वो आ रहा है, किते आके मैनूं कोई दुख ना पहुंचाउण, मैनूं कतल ना कर देण, क्यों पापी सी, पापी दे पाप कंबदे ने, उहनूं डर सी। इस करके उसने बड़ी ही पुलिस की सहायता लैण की कोशिश की, बड़े अफसरां दे नाल लिंक करके उसने भारी फोर्स जिहड़ी सी पुलिस काले अंब विखे लगा दी। जदों नान नूं चढ़ीदा है ना उपर मूंगी नाल तो कि काला अंब आउंदा है, उत्थे जदों काले अंब ते बड़ी भारी फोर्स लगा दी। जदों पुलिस वाले इस जांदे जथे नूं रोकण लगे कि कित्थे जा रहे हो, तो जथेदार साहब जी कहण लगे कि पुलिस वालियां नूं उन्हां ये बेनती की कि असीं अपने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करन जा रहे हैं, गुरधाम के दर्शन करन तो तुसीं रोक नहीं सकते, ते रस्ते विच असीं आउंदिआं किसी नूं भी इस करके कहा गया सी कि किसी की फसल उजाड़न ते, किसी के पट्ठे वड्डण ते जां कुछ करन ते कोई इहो जिहा दोष ला के पुलिस सानूं कैदी ना बना लवे। रस्ते विच बड़ी शांतमई ढंग दे नाल जथा जिहड़ा सी काले अंब तो नाड़ पहुंचे। जदों नाड़ पहुंचे ने, नाड़ तो थल्ले उतरे ने, नाड़ तो थल्ले उतर के एक किसी गुरु प्यारे का ठिकाना सी, उत्थे जाके एक रात वास्ते जथा टिकिया है। जदों उत्थे टिके ने, उस तो अगे पाउंटा साहिब नूं चाले पाए ने। एक रात टिकण तो बाद पाउंटा साहिब तो 4 मील की दूरी ते पिंड पैंदा है पारोवाल, जिथे के मस्तूआना साहिब वाले अतर सिंह जी का स्थान सी। उत्थे जाके ਸਿੰਘਾਂ ने डेरे कीते ने, उत्थे जाके रुके ने। उत्थे रुकन ते पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने पहुंच करके कहा कि अगे जाओगे उत्थे खून खराबा हो सकता है, जंग हो सकती है, इस करके तुसीं अगे जाण तो रुक जाओ। आप जी नूं 3-4 लाख रुपया दे दिता जाएगा, होर भी रस्त पानी जो भी है आप जी नूं दिता जाएगा। ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ नूं अगे जाण तो रोकण की पुलिस वालियां ने बड़ी कोशिश की।
पर ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਰ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚੁਪੇਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਸੀਨਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾ 22 ਮਈ 1964, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਿਓ
गुरु की बेदबी वास्ते ਸਿੰਘਾਂ ने जिथे जिथे भी शहादतां दित्तियां ਹਨ उत्थे ही असीं अज गुरुद्वारा साहब बनवाए हैं। जिवें कि आप जी ने पौंटा साहब की विचार की है। जदों सिंह शहीद हो गए 9 सिंह जिन्हां विचों शहीद हो गए, शहीदां दी देहां नूं ट्रकां विच सुੱਟ के जंगल विच लिजा के संस्कार कर दिता गया। फिर 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ मृतक देहां जो कि बाहर शहीद किए गए सन, उन्हां तिन्हां दा संस्कार जमुना के किनारे पूर्ण मर्यादा दे नाल 24 मई 1964 नूं कीता गया। फिर पुलिस जिहड़ी सी उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्र, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी अते एक दसम ग्रंथ साहिब जी की भीड़ ते रुमाले लै गई। सारा गुरुद्वारा साहब अंदरों लहू लुहान होया पिया सी, जो नाल लगते पानी के चबच्चे विच पै करके सारा पानी लालो लाल हो गया। भाई सरदारा सिंह ने आप जाके उस चबच्चे नूं खून नाल भरिया होया देखिया। गुरुद्वारा साहब दीआं चारे दीवारां गोलियां नाल छाननी छाननी होईयां पईयां सन। दीवारों तो गोलियां दे निशान कर्मचारियों ने जिहड़े सन सींट नाल मिटाउण दी कोशिश की, पर वो चंगी तरह मिटा ना सके। 47 निशान उन्हां दी कीती कारागरी तो बाद भी दिखाई दे रहे सन। एक सिंह जो नगारा वजा के इस हमले की सूचना बाहर पहुंचा रहा सी, उसनूं भी गोलियां मार के उत्थे ही खत्म कर दिता गया। नगारे के लागे गोलियां के निशान इस गल की गवाही दे रहे सन। इस मौके ते 11 निहंग सिंह शहीदियां प्राप्त कर गए। दरियां चादरां जिन्हां उपर खून डुल डुल के खून नाल लथपथ होईयां पईयां सन, पुलिस नाल लै गई, पर जिस कपड़े नाल खून के धब्बे फर्श तो साफ किए सन वो उत्थे ही छड्ड गई, जो खूनी दास्तान की कहानी सुना रहा सी। इस मौके ते शहीदी प्राप्त करने वाले सिंह तरनादल हरियां वेलां दे निहंग सिंह सन, जिन्हां की अगवाई मुख जथेदार हरभजन सिंह जी कर रहे सन। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो जी। अज साका पौंटा साहब का जिहड़ा दिन है वो शहीदियां याद करिए, सिंघां नूं याद करिए कि उन्होंने किवें अपनी शहादतां दे के गुरुद्वारा साहब दी मर्यादा जिहड़ियां ने कायम रखियां, महंतां पासों आजाद करवाए गुरुद्वारा साहब, जिन्हां दे सदका अज भी असीं उत्थे जाके बड़ी इज्जत नाल बड़े प्यार नाल अपने गुरु साहब नूं नमस्कार कर सकते हैं। जो शहादतां ना दिंदे ते खैर हो सकता है अज भी गुरुद्वारे साहब जिन्ने भी हैं उन्हां महंतां दे अंदर ही हुंदे, उन्हां दी निजी जायदादां बन चुके हुंदे ते उत्थे साडीआं धीआं भैणां दी इज्जत किते भी महफूज ना हुंदी। जो अज असीं इज्जत वाला ते बड़े ही अदब सत्कार वाला धर्म जिहड़ा असीं निभा रहे हैं, जिस धर्म विच जी रहे हैं, वो धर्म उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां दे सदका ही सानूं मिलिਆ है। सो उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ध्यान करके सारे ही गज के जयकारा पाइए जी। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। सो उन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं याद करिया करिए, उन्हां दी कुर्बानियां ना भुल्लीए ते असीं भी अपना सिक्खी असूल इहो जिहा अपनाइए कि जिथे भी गुरुद्वारा साहिब की बेदबी हुंदी है, जिथे भी कोई इहो जिहे काम हुंदे हैं, उत्थे जाके अपनी शहादत देण तो कदे भी असीं संकोच नहीं करना, अपने अंदर दृढ़ इरादे बनाइए। सो बेनतियां प्रवान करियो, गलतियां की खिमा बख्शदे हुए फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।